request the IFC from IFCI Venture Fund people to come on the dais and talk about the landscape for the how finance and venture fund can help the OBC entrepreneurs to grow their business. I request Mr. Arindam to come on the dais. Presentation from he will talk about Arindam will talk about the IFCI OBC venture fund. How they are giving, and he talks about the policy guidelines, and how many people are getting benefited, and how our OBC entrepreneurs can apply for the venture fund. So that is a part one, and then Sajjanji can share his experience, how OBC entrepreneurs can be can learn the financial discipline, and how they can grow their businesses. Thank you, and over to Mr. Arindamji. Thank you, Mr. Ramon, and thank you for inviting me in this KFA Business Leaders Summit. I am really honored to be a part of this summit. All distinguished guests, participants, I welcome you. And we are from IFCI Venture Capital Funds Limited. We are based out of Delhi only. Our office is in Nehru Place. So to start with, I would just like to give a brief introduction of what IFCI Limited is, and what IFCI Venture is all about. So IFCI Limited is the first DFI, Development Finance Institution of the country, established in 1948. And this has been into decades and decades of funding, supporting the entrepreneurial base as well as the infrastructure, industrial development, everything. IFCI Venture Capital Fund, as the name suggests, is an offshoot for specifically managing the venture capital arm of the IFCI. So we have also an past record of being into the business since 1975, and since then we have managed multiple venture capital businesses across the avenues. So why I am here, what exactly the scheme I am going to talk about? This is a specific scheme for the backward classes or the other backward classes entrepreneurs who are working in the nation. So this is an initiative which was started in 2018-19 by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So this is a very unique scheme which is supporting all those entrepreneurs who are into the manufacturing space, into the service space, as well as into the allied business activities. So we have been hearing all about from the entrepreneurs, successful entrepreneurs, upcoming grooming entrepreneurs in the last previous sessions. I was hearing about the requirement of the capital expansion, for capital requirement for the expansion and all. So this is one of the scheme which would support you in almost all the aspects. People generally approach the banking channels for the loan activities, as well as for the different venture capitalists for a sort of a seed stage funding, for a sort of a growth stage funding, for development or capital expansion, or even to start from a greenfield project, uh, startups also. So all clustered together, this venture capital fund will support you in almost all the phases of business, even from the seed stage to the growth stage. Whatever stages are there, this funding can provide you in supporting the growth or the capital expenditure to that extent. So, so what is this scheme about? This is a 200 crore fund which we are managing, and in this, we are providing financial assistance in form of equity and debt. When we talk about debt, it's not the pure term loan debt which you get it from the bank. It's type of a डिबेंचर्स, ऋणपत्र जिसको हम कहते हैं. तो ये जो है
आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो। इसमें आपको फंडिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो 20 लाख रुपीज से लेकर के 20 लाख रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक की दी जाती है, 15 करोड़ तक की। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम वेंचर कैपिटल टर्मिनोलॉजी में कूपन रेट कहते हैं, दैट इज ओनली 6% पर एनम, 6% पर एनम है। और उसमें अगर वुमेन एंटरप्रेनर है या डिसेबल्ड बीसी एंटरप्रेनर है उनको 5.75% पर एनम पे दी जाती है। एंड उससे भी अच्छी बात है कि इसमें आपका पार्टिसिपेशन जो है वो केवल इस फंड से डायरेक्टली आपको मिलेगी और प्रोमोटर्स का एक कंट्रीब्यूशन आता है। फंडिंग का पैटर्न मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 100 रुपीज़ का है, 25 रुपीज़ प्रोमोटर अपना लाएगा, मीन्स 25% प्रोमोटर लाएंगे, 75% ये फंड डायरेक्टली देगा टू द कंपनी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और अगर किसी तरह का कोई सब्सिडी अवेलेबल है अपफ्रंट तो फिर प्रोमोटर की जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम 25% टू 15%। सेकेंड बेनिफिट है कि इसकी जेस्टेशन पीरियड जो है दैट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 years। 10 सालों के लिए ये पूरा पैसा मिलता है। और इसमें आपका जो पेमेंट्स होते हैं वो भी टेलर्ड स्ट्रक्चर पे होता है। इसमें आपका जो फंडिंग की जो रिटर्न्स होंगी इसमें अप टू 36 मंथ्स तक का मोरेटोरियम पीरियड भी दी जाती है। और जो पेमेंट्स आती हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे। तो किसी तरह का भी कोई साइक्लिक बिजनेसेस हैं अगर तो वो 3 महीने की जो साइकिल है उसको सस्टेन कर जाएगी। दिस इज ऑल। और इसमें आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के फॉर्म पे केवल प्रोजेक्ट लैंड होती है। इन केस प्रोजेक्ट लैंड अगर नहीं है तो उस समय पे अगर वो आपका लीज में है या फिर आपका रेंटल में है तो वहाँ कोलैटरल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, अदरवाइज नहीं। सो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी यहाँ एंटरप्रेनर्स हैं एटलीस्ट हमारे ऑफिस IFCI टावर नेहरू प्लेस में एक बार हमसे 16th फ्लोर पे आके मिले और इसकी जानकारी और डिटेल में ले और इसका पूरा बेनिफिट ले। बिकॉज ये स्कीम अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है। लिमिटेड फंड्स हम लोगों ने काफ़ी डिसेमिनेट किया है, ऑलमोस्ट 26 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ का डिसेमिनेट कर दिया है। तो केवल 70 करोड़ की फंड अभी अवेलेबल है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आएँ हमारे ऑफिस में और आके इस स्कीम के बारे में जानकारी लेके। हमारा ऑफिस आपको पूरा सपोर्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन मेकिंग एंड ऑल। दिस इज ऑल, थैंक यू। So I would like to take a moment to invite Mr. Anurag Singh Yadav to please kindly join the panel. Now you may all proceed with the Yeah. session. So Anurag comes with an experience of the managing funds and the finance sector. So Anurag was instrumental in helping this business leaders forum to happen so today. So I wanted to ask Anurag and share his experiences and discuss about the investment landscape, especially for the OBC entrepreneurs in India. जी, बहुत ज़रूरी है। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। इज देयर एनी प्रोविजन कि मैं यहाँ पर फ्लैश कर सकूँ अपने पूरे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स? कुछ प्रोविजन है ऐसा? अदरवाइज मैं बता भी देता हूँ। आप लोग प्लीज़ नोट कर ले। हमारे मेरा डायरेक्ट नंबर है 9999 154 278, अरिंदम रॉय। 9999 154 278। और मेरे साथ मेरे कलीग भी हैं, मिस्टर राकेश निषद। एक बार राकेश आप भी अपना नंबर बता दीजिएगा। It's 9871 859584 and landline number is 011
4173 2570. First of all, I'd like to congratulate Ram Mohan ji and the entire KFA team for organizing such a humongous event, and that too, there have been a lot of socio-political events in the history, but I think this is one of its kind, which aims at collaborating different elements of a business ecosystem. सो मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा राम मोहन जी को, पूरी KFA टीम को, डॉक्टर साहब को, सुशील यादव जी को, सबको, है ना। अच्छा, वैसे तो जी। I'd like to touch a few micro but very important points. Although sir has already spoken about the IFCI fund. अभी एक हमने यहाँ प्रॉब्लम देखा कि everybody was quite keen to jot down the number. So सबसे पहले I'd like to request Ram Mohan ji and the entire KFA team. देखिए, कोई हमारे इस संस्था में कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स, है ना। अब मान लीजिए आज मुझे कोई एक लीगल हेल्प की जरूरत पड़ती है, सो ऑफ कोर्स आई वुड पे सम रेम्यूनरेशन फॉर दैट हेल्प, राइट। अगर मेरे पास एक लिस्ट आप एक साझा करें पूरे KFA के मेंबर्स की, एसोसिएट्स की, कैटेगरी वाइज, है ना। if I would have a Bible document that, okay, if I need, let's say, I need a CA for my company, okay, so we have these 30 CAs listed with their phone numbers, with their addresses, with their email IDs. So पहली बात तो वो बिजनेस घर का कम्युनिटी का कम्युनिटी में जाएगा। वो पैसा जो आज मैं भी खर्च रहा हूँ, सर भी खर्च रहे हैं, सब खर्च रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट वुड हेल्प our community members, our community entrepreneurs, our community professionals to earn their living in a better way. Secondly, it would directly help the business in terms of remuneration, है ना। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है राम मोहन सर आपसे, जी, कि हम एक ऐसी लिस्ट साझा करें जिसमें जो जिस कैटेगरी में है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई लॉयर हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, अच्छा, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में एक दूसरे को एक प्रेफरेंस भी मिलेगा औरों के मुकाबले, है ना। तो इट विल बी अ वेरी गुड सेंस ऑफ रिकग्निशन ऑल्सो। सेकेंडली, एक जो काफ़ी विनोद सर ने काफ़ी अच्छा हमें चीज़ें दर्शाई, बताई, है ना, राम मोहन जी ने। मैं एक ऐसा पॉइंट टच करना चाहता हूँ, आई थिंक वो सब लोग समझ पाएंगे। I got into business when I did my MBA from one of the finest B schools in India. It was very clear in my head that I want to be an employer. I don't want to be an employee, because this is what I grew seeing. My father has been industrialist for last 40 years. तो मेरे फादर बिजनेसमैन थे, तो इसलिए मेरे अंदर वो इनहेबिट था बचपन से कि मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। बट ज़रूरी नहीं है कि सबकी फैमिली में ऐसा ही हो। किसी के फादर मदर हो सकते हैं, पेरेंट्स वो जॉब में हैं, किसी और चीज़ में है ना। तो एक मेंटोरशिप का एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है, जो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी कम्युनिटी से जो आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अब उनके घर में कोई ऐसा सिखाने वाला, समझाने वाला, गाइड करने वाला कोई ऐसा मेंटोर नहीं है जो उनको डायरेक्ट समझा सकता है कि आप ये करिए, ये मत करिए, आप इस तरीके से यू शुड गो अबाउट इट। आपको कहीं डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि राम मोहन जी, हम लोग KFA की तरफ से जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, है ना, जैसे मैं समझता हूँ कि सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं जो डायस पे बैठे हैं, सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, है ना, एवरीबडी इज हियर, दे आर सो सीनियर, सो एक्सपीरियंस। तो इनके एक्सपीरियंस का असली लाभ तो हम तभी उठा पाएंगे जब ये हमारे मेंटोर्स बनेंगे। सो वी शैल फॉर्म अ बॉडी ऑफ मेंटोरशिप, and we should have mentors, and these mentors should dedicatedly take up few budding entrepreneurs के भाई ये 5 बच्चे हैं, ये 5 लोग हैं, इनको मैं देखूंगा,
इनकी दिक्कतें सॉल्व करना, इनको गाइड करना, इनको डे टू डे कोई भी जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें गाइड मैं करूँगा, है ना? तो दिस इज काइंड ऑफ अ बिजनेस गुरु मॉडल, यू नो, फॉर आवर ओन कम्युनिटी, है ना? और एक मैं और एक टॉपिक को टच करना चाहूँगा छोटा सा, जो हम मैक्रो फाइनेंस की बात बहुत लोग करते हैं, सर ने भी करा आईएफसीआई फंड के थ्रू, देयर लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स, देयर लॉट ऑफ एआई फंड्स आल्सो, है ना, अवेलेबल इन द मार्केट। मैं माइक्रो फाइनेंस की बात करना चाहता हूँ। माइक्रो फाइनेंस है कि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, और 5 लाख रुपए मैं बैंक से भी नहीं ले पा रहा किसी कारणों से, और मैं कहीं और से भी नहीं ले पा रहा, लेकिन मैं 5 लाख रुपए हो सकता है अपने किसी दोस्त से ले सकता हूँ। वो एक माइक्रो फाइनेंस जो आजकल अगर आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर हम एक छोटा एक एनबीएफसी मान लीजिए केएफए के माध्यम से हम एक ऐसा डेवलप करें, बाकी तो डॉक्टर सज्जन यादव जी मेरे को देख रहे हो, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसके ऊपर लेकिन जो है हम एक ऐसी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी हम अगर क्रिएट कर सकें, मैं चाहूँगा, तो उससे क्या है कि जो छोटी हेल्प है, जो एक छोटी फाइनेंशियल एड है, 5 लाख 10 लाख 8 लाख, जो ओपेक्स में कहते हैं किसी छोटे बिजनेस के लिए, तो वो बहुत ईज आउट हो जाएगा, है ना? और अल्टीमेटली वो जो हम इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं, हम वो इस माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी को पे कर देंगे, ऐसा नहीं है ना? और एक मैं चाहूँगा राममोहन जी और केएफए से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर बनाएं, एक हेल्पलाइन नंबर बनाएं, या एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी बनाएं, या कुछ भी, जिस विच शुड बी अनोनिमस टू एवरीवन। और आप किसी भी प्रकार की कोई भी आप हेल्प, कोई मदद चाहते हो, प्रोफेशनल कम पर्सनल ग्राउंड्स पे, तो आप उस पे मतलब उस आदमी की एनोनिमिटी को ध्यान में रखते हुए हैं, और हम उसको वहाँ रीच आउट कर सकें, और एक कोई ऐसी हमारा केएफए की तरफ से कोई डेजिग्नेटेड लोग हों जो उसको सही जगह चैनलाइज करें। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड नेक्स्ट। No, you really nailed it down. So because in fact, we were, thinking of this from last, couple of weeks, because you need a place or, a person or a system to, address, some of the, one is, the people, larger, issues maybe within the, system, what of the issues that they have. And we are creating a secretariat. That secretariat, will help the people individually and also the organization. Like, some of the organizations have certain challenges. Those organizational challenges and the organization, whatever the challenge that they got, so can collectively we can represent, and we can do some kind of a representation or do a lobbying or do it is genuine. It's not that, so we each and everything, we can take it a personal, things and, address them, but a genuine thing that can be addressed, and then we are creating a secretariat here, and definitely, so we will, do that. Yeah. And especially, so I'm a great follower of, Sajanji. I'm very, quite active in social media. So I keep, seeing his posts and, everything on the Facebook, quite regularly. And he's very much active on that. Both, yeah. So he's into the, the finance domain, senior, bureaucrat, and he's with the finance, yeah, powerful ministry. And as Anurag also, that, how the NBFCs can be opened, how, the cooperative, this one, the finance, and the microfinance is another area where you can micro, small, and medium enterprises can be, supported. So in that area, if he can throw a light on this, there'll be really great help to the entrepreneurs here. Thank you, Rammohan ji. I'm good. And thank you, madam, and all other dignitaries on the dais. So, first of all,
थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये कई बार ना थोड़ा मिसनोमर होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूँ लेकिन मेरे को ज़्यादा फाइनेंस आता नहीं है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मैं बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हूँ, फाइनेंस का बिल्कुल नहीं हूँ। पोजिशनली मैं हूँ, या नो डाउट, बट अदरवाइज आई एम ए वेटनरी डॉक्टर and I have more interest in social sector rather than finance, but finance also has part in finance is in everything, so इसलिए so अनुराग जी ने बहुत अच्छी टिप्स बताई, बहुत ही अच्छा लगा। 3-4 जो सजेशंस इनके थे बहुत अच्छा था, एंड उसमें कोई भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरा जो, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूँ तो कुछ स्कीम्स के बारे में ही आपको बताता हूँ। हो सकता है आपने कुछ ने सुना हो, कुछ ने नहीं सुना हो, लेकिन एक डेफिनेटली है जिसके बारे में कम सुना होगा, और वो स्कीम जो है वो सबसे बड़ा हाथी और सबसे मेगा स्कीम है, आई वुड से, एंड विच इज़ वेरी वेरी रिसेंट। सो इट इज़ कॉल्ड RDI स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए मेरे को लगा कि इस बारे में आपको बताता हूँ। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन का जो आउटले है, जो बजट आउटले 5 साल के लिए, वो है 1,00,000 करोड़। यस, ही नोज, सो ही इज इनटू दैट फील्ड। सो 1,00,000 करोड़ इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, एंड 5 ईयर के लिए तो एक साल में 20,000 करोड़। तो शायद ही कोई स्कीम है सरकार की एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि इतनी बड़ी स्कीम है। और उसके बाद ये है कि सरकार इसको देगा एज इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन टू द, there is a RDIF, Research Development Innovation Fund. There will be a fund set up from this 1,00,000 crore, which government will give as 50-year interest free. And from this fund will then fund a number of AIF जो आप बोलते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं, या जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, उन वेंचर कैपिटल फंड्स को वेरी कंसेशनल लोन और इक्विटी, आई वुड से, के बेस पे ये दिया जाएगा। सो इट इज़ बोथ इक्विटी एज वेल एज लोन कंपोनेंट। एंड इसमें से कुछ सेलेक्टेड तो गवर्नमेंट वाले AIF होंगे, जैसे सिडबी हो सकता है, या कोई और हो सकता है, AFCI हो, या कोई भी हो सकता है, ये भी लाइन में होंगे। सो बहुत लोग लाइन में हैं उसके लिए, लेकिन ज़्यादातर जो AIF बनेंगे इससे, वो प्राइवेट सेक्टर के AIF बनेंगे, प्राइवेट AIF होंगे। और प्राइवेट AIF में यहाँ से फंड दिया जाएगा, और वो प्राइवेट AIF फिर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे दोनों तरीके से, इधर हाईली सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट लोन, मतलब बहुत ही सस्ता वाला, आप भूल जाइए बैंक का रेट, बहुत ही सस्ता, आई थिंक वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज पे, एज वेल एज इक्विटी। And that loan will be for a longer term, that is say 20 years, 15 years minimum. और वो किसके लिए होगा? That loan is for innovative technologies, deep tech हैं, strategic technologies हैं, उसमें दिया जाएगा। And in that also, ये एक ऑब्वियसली ये तो आपका असेसमेंट के बेस पे होगा कितना उसका पोटेंशियल है, बट जो बहुत ही लैब से जस्ट टेक्नोलॉजीज बाहर आई हैं, वी से TRL लेवल 4 के ऊपर जो आ गई हैं, तो इसका पर्पस है TRL 5 to 12 तक ही होता है ना, 10, सॉरी मैं थोड़ा आगे चला गया। सो TRL 5 to 10 में जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए ये पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है। एंड आइडिया यही है कि जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ लैब में प्रूव हो जाती हैं लेकिन उसका कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो अगर आपके पास भी इस तरह का कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ आइडिया है जो प्रूवन है, उसको आप स्केल अप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसको अभी इनिशियलाइज किया ही जा रहा है, इट इज़ नॉट इन पब्लिक डोमेन मच, क्योंकि अभी ज़्यादा इस पे कैबिनेट से अप्रूव्ड है, उसके बाद में इसका मैन पावर रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है, और उसके बाद में ये फंड आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 इट विल स्टार्ट। तो दिस इज वन आई वुड वांटेड टू शेयर।
अदरवाइज तो बहुत सारी और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, पूरा फोकस है गवर्नमेंट का कि स्वदेशी हो, हम आत्मनिर्भर हों, हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। पीएलआई स्कीम आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते होंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पर अगर हम वेंचर कैपिटल में भी आते हैं तो और भी वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं वो सेटअप किए हुए हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स है जो एमएसएमई का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आई थिंक सिडबी चलाता है, सिडबी मैनेजेस दैट फंड, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंड। एंड फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो तो बहुत सारी हैं, आई वुड से बहुत सारी हैं, दोनों क्षेत्र में है, माइक्रो फाइनेंस में भी हैं और जनरल फाइनेंस में भी हैं। एंड वो जनरली 3 कैटेगरी का सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। वन इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन, जो कि आपका 3% है, एमएसएमई में बहुत जगह है 2%, 3%। सेकंड इज़ गारंटी, जिससे कि बैंक आपका थोड़ा सस्ता लोन देता है, सो गवर्नमेंट पेज द गारंटी फी, वो जो सीजीटी एमएससी से होता है, या दूसरा हमारी गारंटी की 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक नाबार्ड का है, एक और है, सो इनसे होता है। एंड थर्ड इज सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम्स, जो जनरली बैक एंडेड सब्सिडी होती है, विच इज़ देयर इन डीपीआईटी में भी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है विच इंक्लूड्स फिशरीज, देन you have hot means lots of ministries like प्रधानमंत्री की भी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। सो इन सब में आप कर सकते हैं, किसी को उसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। सो दैट इज़ ऑन द प्रोफेशनल पार्ट। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल पार्ट, इन्होंने अच्छा बताया आइडिया बहुत, अनुराग जी ने। सो मेरी अभी एक बुक आई है विच इज़ स्केलिंग माउंट यूपीएससी, inspiring stories of 7 young IAS officers. So that is my second book. First book was India's vaccine growth story. So the second book इसलिए मैं ला रहा हूँ, not to tell you about the more about the book या publicity of the book, but because इसमें बहुत अच्छी inspiring stories हैं 7 बच्चों की, जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, डिफरेंट बैकग्राउंड हैं लेकिन डिफरेंट स्टेट्स हैं, पर सबका मेन थ्रेड यही है कि वो इतना हाई फाई उसमें पैदा नहीं हुए, अनुराग जी की तरह बहुत हाई फाई इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ नहीं हुए, बट वेरी नॉर्मल घरों में हुए। वहाँ से आगे बढ़ के उन्होंने आईएएस में सफल हुए, आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो अगर कोई आपका केएफए की तरफ से इस तरह की कोई मेंटरिंग की ज़रूरत है, हम बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, रेवेन्यू सर्विस में, दूसरी सेंट्रल सर्विसेज में ऑफिसर्स हैं, एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड मेंटरिंग। बहुत सारे लोग करते हैं कि जो बच्चे, खासकर वो करते हैं जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, उनको इंटरव्यू की गाइडेंस देनी है, दैट इज़ मोर 1-to-1, मोर ऑफ मेंटरिंग, या इवन फॉर मेंस एग्ज़ाम या प्रीलिम्स एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोग उसी प्रोसेस से निकल के आए हैं। और अभी क्योंकि मैंने ये किताब लिखी तो यंग बच्चों से बहुत सारी बातें की, तो उनका लेटेस्ट पैटर्न का आइडिया है, लेटेस्ट स्ट्रेटजी का आइडिया है। तो इस तरह का भी कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई इनिशिएटिव आप लोग केएफए से करना चाहते हैं, सो आई एम रेडी टू हेल्प टू द एक्सटेंट पॉसिबल जी। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू राम मोहन जी। Thank you, sir. Thank you very much. I request Madam Sushma ji to give a concluding remarks and your talk. Yeah. Thank you. The President, Chairman KFA, Ram Mohan ji, our esteemed panel, Anurag ji, Arindam ji, Sajjan ji, और आप सब जो KFA के दिल से जुड़े हैं, आँख हैं, कान हैं, हाथ हैं, सभी हैं, आपसे मिलकर ये KFA बना है और आप आज आए हैं तभी ये सफल भी हुआ है। ये एक बहुत सुंदर चर्चा थी, मैं समझती हूँ पैनल था, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम आरंभ करते हैं तो बहुत सारी शंकाएं मन में आती हैं, और जब शंकाएं आती हैं तो हम रुक जाते हैं, फिर भी सोच लेते हैं, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, फिर हमको मार्ग कौन दिखाएगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा की बात अरिंदम जी ने आपके सामने कर दी और आपने नंबर अवश्य लिया होगा। अनुराग जी ने वो बातें उठाई जो किसी भी संगठन को सोचनी चाहिए, एक हेल्पलाइन हो, कहीं जानकारी मिले, कहीं
कोई मेंटर मिले, कोई हाथ पकड़ के ले चलने वाला या मार्ग दिखाने वाला भी मिले, और वो सब ना हो तो कम से कम फ़ोन पे हेल्पलाइन हो, कोई शंका मन में आए आप बात कर लें। और ये सब बातें हमने सोची थी। इसलिए ये बात जब यहाँ आई तो जैसे हम सबका मस्तिष्क ही अनुराग जी के पास भी चला गया हो ऐसा लगा। पर आपने बहुत आवश्यक बातें बताई। और सज्जन सिंह यादव जी से हम परिचित हैं पुस्तकों के माध्यम से, उनके काम के माध्यम से। दिल्ली में तो वो अधिकांश समय रहे हैं विभिन्न कैपेसिटीज़ में। तो बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने बड़ी-बड़ी गंभीर बातें बता दी। मैं चाहती हूँ कि आप में से जितना अधिक से अधिक हो सके, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नया इनोवेशन के लिए फंड निकला, आप जानते हैं अब वर्तमान सरकार को इनोवेशन बहुत प्रिय है। तो कुछ नवाचार कर सकें, नवाचार विचारों में हो, व्यवहार में हो, कार्य में हो, व्यापार में हो, वो आप देख लें, लेकिन इसका लाभ उठाएँ। और ये बहुत अच्छी स्कीम आपको बताई है, वह करें। ये बोलने का अवसर मुझे मिला है तो इतनी बात ज़रूर कहूँगी, आप राम मोहन जी के लिए और इस पूरे पैनल के बहुत ज़ोर से तालियाँ बजाएँ। इसलिए इसलिए कि जब हमने ये प्रोग्राम सोचा था, तो हम सब बड़े शंकित थे। 300 राम मोहन जी ने कहा हम विल हैव 500 यंग ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन फ्रॉम द कम्युनिटी। विमेन नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन आई एम श्योर वील हैव मोर विमेन आल्सो नेक्स्ट टाइम। हाँ, so but he said business, and it is a business summit. We all were really apprehensive inside. But the best part is, and maybe we can learn from it. I also learned. Best part is, whenever we were apprehensive and we said, Ram Mohan ji, this doesn't seem possible. And he said, don't worry, madam. He never felt negative. He never said negative. Ram Mohan ji, I will not be able to come that day. Don't worry, madam. When you can come. So I think that is the spirit and that is the way. डॉक्टर जे.एस. यादव सामने बैठे हैं, इससे पहले वो देख रहे थे, सुशील जी बैठे हैं। हम सबके मन में शंकाएं थी, विनोद जी के मन में भी शंकाएं थी, बट यू मेड इट पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। आई रियली विश we will meet here again and again, now for business summit, next for professional summit, maybe another, right? This is just the beginning. आप सब हमारे साथ रहें, आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहें, आप सबका सहयोग हमारे साथ रहें, तो श्री कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण फाउंडेशन फॉर ऑल अवश्य ही नित्य नूतन तरक्की या उन्नति का मार्ग चलाएगा। जय श्री कृष्ण। Thank you so much. Well, now I would like to take a moment to invite our senior news anchor, Ms. Pooja Yadav. Pooja Yadav. Let's give them a big round of applause, ladies and gentlemen. सो पूजा यादव, भारत 24 में सीनियर एंकर, एज एन सीनियर एंकर काम कर रही हूँ अभी मेरा एक शो चल रहा है जनता की आवाज़, जिसमें हम जनता के जो इश्यूज़ होते हैं हम उसको उठा रहे होते हैं, उस पर हम बात कर रहे होते हैं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ में जनता होती है, क्योंकि जैसा कि शो का नाम है जनता की आवाज़, तो जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप पर बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि फीमेल्स को इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन है ना, वो आप लोग जो ये फ्रंट रो में लोग बैठे हैं ना, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इवन बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं जब अपने बारे में बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी फीमेल सिंगल फीमेल अगर सक्सेसफुल है और वो फैमिली में भी है, वो फैमिली रन कर रही है, तो उसमें उसकी फैमिली का इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप लोगों का साथ नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी फीमेल आगे बढ़ जाए। और मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मेरी फैमिली में इतना सपोर्ट है कि मेरा एक छोटा बच्चा भी है, स्टिल आई एम हियर। अभी शाम के लगभग 5 बजने वाला है, आई एम स्टिल हेयर, और मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली मेरे पास बैक सपोर्ट में है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी पुरुष के आगे बढ़ने में एक महिला का हाथ होता है, तो आई बिलीव कि किसी भी महिला के आगे बढ़ने में भी पुरुष का हाथ होता है। तो ये मेरा अपना माइंडसेट है, और मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब हम बात एंटरप्रेन्योरशिप की करते हैं तो देखो, पॉलिसी तो ऑब्वियसली मैटर करती ही है, लेकिन पॉलिसी के साथ साथ ना हमें मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक सोच है कि महिलाओं को हम ज़्यादा रिस्की काम नहीं दे सकते। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं से ज़्यादा रिस्की काम कोई ले ही नहीं सकता।
मतलब उनसे ज्यादा रिस्की काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ पर टाइम से पहुंचने के लिए जो मैंने रिस्क लिए हैं, मुझे लगता है वो रिस्क भी कोई नहीं ले सकता। तो मुझे ये था कि जल्दी पहुंचना है, तो आप लोगों के बीच में मैं लेट हो चुकी हूँ। तो ऑफ कोर्स रिस्क लेने का जो फैक्टर है वो महिलाओं में भी होता है। और मैं कि महिला हूँ तो मैं सिर्फ महिला ओरिएंटेड बात नहीं करूँगी कि सिर्फ महिलाओं के लिए बात करो, और मैं कोई ऐसे फेमिनिज्म वाली बात नहीं करूँगी। मेरा मानना ये है कि इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमारी सोच बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। हमारी सोच देश को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। ऑफ कोर्स देश के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की भी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक समूह बनता है ना, धीरे 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 करके, तब हमारा पूरा देश आगे बढ़ता है। तो ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। मुझे लगता है कम शब्दों में मैंने पूरी बात कही, और अगर कही है तो आप लोग मुझे प्रेज कर सकते हैं। She is paid for speaking, so she won't mind. मिस पूजा, हम तो चाह रहे थे कि आप चुप ही ना हो। हमें सबको इतना मजा आ रहा था। आई मीन इट वाज रियली गुड। Well, thank you so much, everyone.